जोटा कि तमरा 12th क्लास रे थाए पढी के आस्तिबो समस्ते किंतु बेसिक कांसेप्ट रे किछिटा टर्म रहउची जोटा कि मु जणै दउची कारण न्यूमेरिकल कला बेले अन्य कोनोसी चैप्टर रिलेटेड न्यूमेरिकल कला बेले सेही सब टर्म गुडा कर आवश्यकता पड़िबो तो प्रीवियस क्लास रे कंसंट्रेशन टर्म्स ऊपर मु पढैथिली परसेंटेज ऊपर percentage by mass, percentage by volume, percentage by strength. Okay, so percentage by mass is also called as W by W percentage. Clear? It is also called as W by W percentage. बुझे? Similarly, Yes, sir. volume percentage or percentage by volume is called as V by V percentage. Okay. Similarly, जोड़ा में कहूँ percentage by strength that is equal to your weight by volume percentage. Weight by volume percentage एवढे आम्ही सब discuss करिथिले बुझियला. So W by W percentage. Kalim, Yes, sir. you know what is your percentage by Percentage mass of or mass. percentage by strength? Yes, sir. Little bit. So tell me what is percentage by mass. कौन जानी चाहिए percentage by mass ऊपर? Sir, mass of solute by I think mass of solution. Mass of the solute divided by mass of the solution into 100. ताको percentage रे express करिया पे हमको गोटे 100 multiply करिया को पड़िबो. Very good. Yes, sir. Okay. Now I will ask you another question. जे तमे आंसर टा देलो सिपै कि गोटे क्वेश्चन आउट पछरिबा. जदी if in a question it has been given that the in a NaCl solution percentage by weight is 10%. Percentage by weight is 10% or percentage by mass is 10%. Then what is the significance of this term? आमे कौन बुझिबा जदी हमकु देथिबो जे in a NaCl solution the percentage by mass or percentage by weight is 10%. So what is the meaning? Means 10% of the whole solution is NaCl. 10% of the 90% whole water solution is yes. Okay, in a solution there are three components. One is solute component, another is solvent component. The solute and solvent when mixed with each other then it forms the solution. solution. Okay, so if I am telling you that it is 10%, percentage by mass is 10% of the solution, that means if I will consider the whole mass of the solution is 100 gram, if I will consider the whole mass of the solution is 100 gram, I think it is something problem. Okay. So it will be it is given that 10%. Okay. 10%. Okay, that means if I will consider total solution का mass जो होता है, if it is 100 gram, यदि total solution ना mass यदि 100 gram है ला, then solute रो जो mass था वो that will be 10 gram. Okay, यदि Yes, sir. solute रो mass यदि 10 gram है ला, बाकी जो रही गला कहते 90 gram, that 90 gram will be of solvent water. Yes. हला water रो mass तो हमारा 90 gram होगा. That is the significance of 10% by mass. Yes. Okay, very good. Okay, bolo. Similarly, another new student अछि बता हमरो. It is बाबा तुम जेट नाम ना कोन बोली गली पुनी लेट नाम ना सोनालिका. Sonalika, Yes, sir. beta, do you know what is percentage by volume or V by V percentage? किसी idea अछि? What is the meaning of V by V percentage? Volume of Yes. solute divided by Yes. total number of total volume of solution into Very good. 100%. Very good. Volume of the solute divided by total volume of the solution into 100. Okay. If I will ask you that if in a solution of ethyl alcohol, the percentage by volume is 15%. The percentage by volume is 15%. Then what you will tell? What is the meaning? What is the significance of 15% volume by volume percentage? Or percentage by volume is 15% of a ethyl alcohol solution. So यार significance कौन होगा? जेमती कॉलिम कहला percentage by mass विषय रे
तार सिग्निफिकेंस जेमति से कहला NaCl सॉल्यूशन रो सेम can you tell that what is the meaning of V by V percent of 15% of a ethyl alcohol solution? Yes, asibo. Okay, very good. solution. Very good. ठीक अछि किछि प्रॉब्लम नै मु कहि दोछि जेमति V by V percentage ता तुमे कहलो that is our volume of the solute divided by volume of the solution into 100. Similarly, if we will consider 15% V by V, volume by volume, or percentage by volume is equal to 15% of ethyl alcohol solution. So can you tell me in a ethyl alcohol solution who is the solute? What a ethyl alcohol solution who will be the solute? Yes, if in a ethyl alcohol solution I will take, who is the solute in that solution? Ethyl alcohol. Very good. Ethyl alcohol will be my solute. Ethyl alcohol will be my solute. जेतबेले हमें सॉल्यूशन चैप्टर को पढिबा सेतबेले मु कहिबी जे केमिति गोटे सॉल्यूशन ने तुमे सॉल्यूट के सॉल्वेंट के केमिति जानि परिबो बुझी होची साधारणतः गोटे सॉल्यूशन रे जहार मात्रा अधिका थाए जहार अमाउंट विल बी मोर ताकू कुआ जाए सॉल्वेंट जहार अमाउंट लेस थाए ताकू कुआ जाए कोन सॉल्यूट बुझियला तो in the solution of ethyl alcohol my solute will be ethyl alcohol that is C2H5OH and my solvent will be water बुझियला तो जदि मु कहली 15% V by V volume percentage is 15% तार अर्थ होउची जदि 100 ml मु solution नेली if I will consider the volume of the whole solution is 100 ml then the volume of ethyl alcohol that is the solute will be 15 ml केते ml हबो 15 ml बुझियला now can you tell me what is the volume of water? Yes, Sonalika. 85 ml. Okay, ठीक अछि कोई बात नहीं सोनालिका बुझियला केमिति ताकू मैं एक्सप्रेस करली हेलो Yes, sir. Okay, very good. So this is your V by V percentage. Okay. So ये थिला तमरा V by V percentage जो माने हम कारण नुवा स्टूडेंट जॉइन करछो तो सेत पे टिके रिवाइज करे दोछि नले नेक्स्ट टा पढै थांदा Similarly your weight by volume percentage or percentage by strength same formula W by V percentage रे भी same formula that is your W by V percentage कोन हबो mass of the solute divided by volume of the solution into 100 that is called as your percentage by strength or W by V percentage mass of the solute divided by volume of the solution into 100 बुझियला तो ए विषय ऑलरेडी पढ़ा सरथिला समस्त बुझिला तो एको ऑलरेडी हमें कवर करथिले ओनली फॉर द न्यू स्टूडेंट्स एटा मु टिके रिपीट कर देली बाकी एटा हमें कवर कर देथिले ऑलरेडी प्रीवियस क्लास रे ता ऊपर किछटा न्यूमेरिकल भी करैथिली बाकी बेसी कराई नथला न्यूमेरिकल करबा सरी गला परे मैक्सिमम न्यूमेरिकल करी कि ना तार नेक्स्ट चैप्टर टो में जिबा हला ओके टिके वेट करो मु पीडीएफ टा शेयर कर दोची Is it is visible to everyone? Note is visible to everyone? Yes, sir. Very good. Okay. So this is about your actually chapter ta solution ro kisi concentration term ro seti bhalo jinso thila set pay note ta mo share karuchi
बाकी यार पार्ट जेति के अछि कंसंट्रेशन टर्म पई सेति के तम सहित शेयर कर दिया जीवो बुझियला यार मु शेयर कर देबी जेति कंसंट्रेशन टर्म सेति के हमर दरकार बेसिक कांसेप्ट में सेति मु शेयर कर देबी बाकी तमर जतल चैप्टर पढाओ सॉल्यूशन देन यू विल गेट द होल नोट ओके तो पिला माने कंसंट्रेशन जो माने भी अछ नुवा पिला देखो न्यू स्टूडेंट सॉल्यूशन रे कंसंट्रेशन ता माने होजी हाउ मच सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट केते अमाउंट रा सॉल्यूट सॉल्वेंट रे मिसा जाई छी ताको हमें कहू कोन सॉल्यूशन रा कंसंट्रेशन बुझियला एग्जांपल से गोटे देई छी लिक्विड कॉफी रो गोटे एग्जांपल दिया जाई छी जे कॉफी जो हमें पिउ छे दैट इज ए सॉल्यूशन लेट इट बी ए सॉल्यूशन जदि हमें ताको सॉल्यूशन नोचे then our coffee crystal will be our solute and water is solvent water ta solvent coffee crystal ta solute बुझियला so a solute is dissolved in solvent to make a solution so साधारणतः मु कहली कोन सॉल्यूशन रा दीटा पार्ट थाए गोटेला सॉल्यूट पार्ट गोटेला सॉल्वेंट पार्ट पाखा पाखी समस्त क्लियर थिबो आ ता पर अधिक आलोचना करूनी हला तो पिला माने सोडियम क्लोराइड इन मेक्स सॉल्ट वाटर जदि हमें सोडियम क्लोराइड बा टेबल सॉल्ट को हमें जदि वाटर में मिसौचे से हम सॉल्ट वाटर दउची सिंपली कॉमन टेबल सुगर जोडा रहउची हमें जोडा चीनी वाले व्यवहार करते सेटी सुक्रोज इन वाटर मेक्स सुगर वाटर ताको मध्ये वाले सॉल्यूशन in which our solute will be sucrose or our table sugar and solvent is water okay so like this किछटा एग्जांपल देइची बेसिक एग्जांपल बुझी परिबो त माने कि व्यस्तता इथले नाही तापर देखो ways to express the concentration को वे रे हमें कोन करबा ना concentration टा को एक्सप्रेस करबा so percentage by mass only percentage by mass देइची एठी ता सहित मु त percentage by volume percentage by strength w by w percentage v by v percentage w by v percentage already mu आलोचना करि साथी okay so now we will go to your mole fraction पिला माने मोल फ्रैक्शन सुनिचो समझते मु कंसीडर करबी जे तम माने किछि जानि न सेही बेले भाबी कि मु पूरा बेस रु पढेई बुझी होची तो जदी किछि भी जगार डाउट अछि यू कैन आस्क फ्रीली एवरीवन पुराना पिला मान तो ऑलरेडी क्लास करलेनी बाकी जो तीन जन नुवा जॉइन करछो इफ यू हैव एनी डाउट देन जस्ट unmute your mic and please ask your doubt okay कौन प्रकार प्रॉब्लम नहीं संग संग बताइए so now we will go to your mole fraction okay mole fraction पिला माने mole fraction ना माने कौन what is the meaning of a fraction what is the meaning of a fraction भाग करिबो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर थिबो सर जार okay numerator और denominator थिबो anyone any new answer ग्रुपिंग भाग करिबा again बाबा कहो आउथरे बुझी पालिनी भाग करिबा ग्रुपिंग अच्छा रितिका Yes, sir. कौन हबो what is the meaning of a fraction But divide over. divide हो very good संतोष ओके सर कौन बाबा फ्रैक्शन माने कौन एनी आइडिया कौन जान चुको डिवाइड आज्ञा ओके ठीक अछि पिला माने कहले जे फ्रैक्शन माने ला डिवाइड मृत्युंजय कला जार न्यूमरेटर थिवो डिनोमिनेटर थिवो दैट इज ए फ्रैक्शन वेरी गुड ओके ताकू मध्ये हमें फ्रैक्शन कहिबा अच्छा से सब तो इटी मैथमेटिक्स सब पिला कहले हमरो बाकी मु वर्तमान कोच देखो पिला माने फ्रैक्शन होउची गोटे जिंस को आ गोटे जिंस सहित हमें डिवाइड करिबा जोन सब कहले डिवाइड दैट इज थिक बुझियोची फ्रैक्शन मींस गोटे जिंस को हमें आ गोटे जिंस सहित हमें डिवाइड करिबा जेम देट देइची मोल फ्रैक्शन नो अर्थ होउची मोल्स को डिवाइड करिबा बुझियोची ना नहीं जदि मते एटी प्रेशर फ्रैक्शन कहि थांदा मने करा कहि थांदा प्रेशर फ्रैक्शन केता हबो आई विल डिवाइड द प्रेशर वॉल्यूम फ्रैक्शन कहि थांदा आई विल डिवाइड द वॉल्यूम एटी मते मोल फ्रैक्शन कहि दी त म एटी कोन करिबी मोल को डिवाइड करिबी बुझियला वर्तमान भाव गोटे सॉल्यूशन रे दीटा कंपोनेंट अछि आगे दीटा कंपोनेंट पय बुझौची देख गोटे सॉल्यूशन रे मने कर दुईटी कंपोनेंट अछि गोटे ए कंपोनेंट अछि गोटे बी कंपोनेंट अछि इन ए सॉल्यूशन देयर आर टू कंपोनेंट्स वन इज योर ए कंपोनेंट अनदर वन इज योर बी कंपोनेंट त मने कर ए रो नंबर ऑफ मोल्स होची n1 B रो नंबर ऑफ मोल्स होची n2 बुझियला
गोटे सॉल्यूशन रे दीटा कंपोनेंट अछंती गोटे होची तमरो ए कंपोनेंट अनदर वन इज योर बी कंपोनेंट तो ए और बी कंपोनेंट मिसी कि ना गोटे सॉल्यूशन प्रिपेयर करूचंती से सॉल्यूशन रे ए कंपोनेंट रो नंबर ऑफ मोल्स इज n1 बी कंपोनेंट रो नंबर ऑफ मोल्स होची n2 बुझियला सब अर्थात मोर टोटल मोल केते हे जीवो कह टोटल मोल केते हबो N1 plus N2. वेरी गुड टोटल मोल भी n1 प्लस n2 अच्छा वर्तमान मते पचरा जीवो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए टा केते हबो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ एटा को लिखा जाए काय ए हला एगो काय को आ जाए सो दिस इज इक्वल टू जहार पचरा हेची मोल फ्रैक्शन तार नंबर ऑफ मोल्स ता रहइबो न्यूमरेटर रे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज n1 plus n2 अरे बुझी पाला ना नहीं समझते जहार मोल फ्रैक्शन पचरा हेची तार नंबर ऑफ मोल्स ता रहइबो न्यूमरेटर रे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बुझियला मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हेलो एवरीवन Yes, sir. कॉलिम बुझी होची Yes, sir. the mole fraction of b similarly mole fraction of your b is equal to jahar pacharichi mole fraction seta N2 by N1 number plus of moles N2. very good tar number ta kon rahbo numerator so it will be n2 divided by n1 plus n2 हे गला दीटा जाको कंपोनेंट रा मु मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करि देली now if I will add the mole fraction of each component that is your chi a plus chi b यदि मु ऐड करली then केता हबो that is n1 divided by n1 plus n2 plus n2 divided by n1 plus n2 if I will add 1. the fraction of each component then the answer will be 1 बुझियला ता माने गोटे सॉल्यूशन रो जेतबेले हमें देखिले एटी दीटा कंपोनेंट रा में एग्जांपल नै छे जदि दीटा कंपोनेंट देइ छि जेतबेले हमें तांकर इंडिविजुअल रो मोल फ्रैक्शन टा को ऐड करू छे देन आवर नेट रिजल्ट विल बी 1 बुझियो छि ना नै फाइनल रिजल्ट केते मिलिबो 1 मिलिबो बुझियो छि तो एठी मु दीटा Yes, को sir. नै करछि एठी मु दीटा को नै करली दीटा कंपोनेंट नै करली मल्टीपल कंपोनेंट भी थाई पारे अरे रहि परिबो ना नै सब बेले कोन माने अछि जे दीटा कंपोनेंट नै कि मिसी किना सब बेले मोल फ्रैक्शन देइथिबो ताटो अधिक भी रहि पारे ठीक ना नहीं तीनटा रही पारे चारटा रही पारे पांचटा Yes, रही sir. पारे हला तो सेते बेले हेले भी सही सेम मोल फ्रैक्शन माने डिवीजन ऑफ मोल्स जहार मोल फ्रैक्शन पचारि थिबो तार नंबर ऑफ मोल्स ता को न्यूमरेटर रे लिखिबो डिवाइडेड बाय होल नंबर ऑफ मोल्स टोटल मोल ता जति गइथिबो ताको डिनोमिनेटर रे नै ताको डिवाइड कर तो मनी ने मने करा मोर n नंबर ऑफ कंपोनेंट अछि गोटे सॉल्यूशन रे मोर n नंबर ऑफ कंपोनेंट अछि बुझियला a कंपोनेंट अछि b कंपोनेंट अछि c कंपोनेंट अछि एमती नंबर ऑफ कंपोनेंट अछि n नंबर ऑफ कंपोनेंट मनकर अछि बुझियला तो जेतबेले मु यार मोल फ्रैक्शन ता कैलकुलेट करबी समस्त नंबर सो इट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ a प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ b प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ c अप टू जेतेटा तमरो कंपोनेंट गिवन थिबो बुझियो छी इज इक्वल टू हाउ मच 1 अरे बुझियला ना नहीं Yes, sir. if there are more components in a solution just add them your net result will be equal to same 1 okay so now mole fraction समस्त बुझी पालो क्वेश्चन देले आसीबो की क्वेश्चन ओटा Yes, करिबा sir. ओके तो पिला माने क्वेश्चन टा एटी मु शेयर करनी क्वेश्चन टा पर किछि अछि बाकी ओटे क्वेश्चन मु डाकुची समस्त नोट कॉपी रे लेखो तार आंसर टा को जेतो अधिक पिला अछि समस्त चैट बॉक्स रे मते जस्ट आंसर टा सेंड करिवो हला so write down the question a solution is prepared by adding 360 gram of glucose to 864 gram of water 360 gram of glucose that is C6H12O6 to केते वाटर अमाउंट केते 864 ग्राम of H2O बुझियला 360 gram of glucose to 864 gram of water पचरी जी calculate the mole fraction of glucose
Calculate the mole fraction of glucose. बुझी पालो समझते? Question बुझी पालो समझते? Anyone having any doubt related to the question? Ritika, Mrutunjaya, Santosh, Rudra? No, sir. No doubt. Okay. No apila Kolim? Okay. Then amaro Sonam? ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ବୋଧେ क्वेश्चन ओके ठीक ଅଛି ଆସୁଛି ତ क्वेश्चन କରିପାରିବ ତ सर कहार दबार अछि ग्लूकोज ना वाटर सर मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज जार आंसर भारी गला दे कैन सेंड इन द चैट बॉक्स फास्ट यू हैव ओनली 1 मिनिट अधिक समय दे हबनी एंट्रेंस क्लास ता माने तमो क्वेश्चन करिया में चेष्टा करिया पड़ियो केमदी गोटे मिनिट रे क्वेश्चन को करियो यू मस्ट ट्राई सबु एमसीक्यू को केमदी हमें गोटे मिनिट रे करिया चेष्टा करबा हे गला समस्त करा कंप्लीट Yes, sir. okay I will check how many have sent in the answer in the chat box because समस्त को पचारि होनी इसमें I will check okay Kalim and Lalit Santosh Mrutyunjaya other students why you have not sent now कहीं के जाए सेंड करना जाए आसुनी की बुझी पारना की कलिम ललित संतोष मृत्युंजय एमान छाड़ी देले अन्य माने रुद्र सेंड कला अबिगा ओके सोनालिका she is not responding ritika sent rudra sent santosh pateji pallavi she is not responding lalit patel kalim divyanjali very good okay so pallavi and sonalika also send it very good everyone try to do okay samaste kariya chesta karo then it will be easy for everyone okay pallavi very good you have sent now very good see तो क्वेश्चन मु कौन कहली जे सॉल्यूशन को प्रिपेयर करती ग्लूकोज और वाटर को लेकिना तो हियर माय ग्लूकोज इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट पचारची मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज केते पचारची मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज ता मोर केते हो तो कौन करिवि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अरे बुझी होची ना नहीं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अरे या करिवि ना नहीं Yes, sir. mole fraction of the glucose is equal to number of moles of the glucose divided by number of moles of the glucose plus number of moles of water अच्छा तो number of moles of glucose केते बाहरिबो what is the number of moles of glucose केमती बाहर करिया बतैथिली मास जदी देइथिबो तार number of moles केमती कैलकुलेट होबो Given mass by molar mass. very good given mass by molar mass बुझियला तो गिवन मास देइछि केते ग्लूकोज रो 360 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्लूकोज रो मॉलिक्यूलर मास केते 180 अरे समस्त 180 बाहर छि तो Yes, sir. वेरी गुड तो आंसर केते हबो 2 बुझियला सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करिबा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर केते हबो गिवन मास देइछि 864 ग्राम divided by molecular mass of water is equal to 18 अरे ठीक ना नहीं Yes, sir. कितना 48. आंसर 48. very good 48 okay so if we will take the ratio to calculate the mole fraction of glucose then it will be mole fraction of 2 by glucose 50. will be equal to 2 by 48 plus 2 Plus 2. that is equal to
2 by 50. Correct? 0.04. So it will be 0.04. 0.04 जो माने आंसर पठाई दिला, you all are correct. बुझियो जी जो मानकर आंसर 0.04 बाहर लानी बुझियो जी कोड भूल हला चेक करो काना हम क्वेश्चन सॉल्यूशन करे देली हला जार जदी कोड प्रॉब्लम होती चेक कर दियो बुझि हला मोल फ्रैक्शन एवरीवन Yes, sir. आगु जिबा ओके मोल फ्रैक्शन ऊपर आहुरी किछि क्वेश्चन करिबा बट एबे पई कांसेप्ट पढी दियो आगे देन वी विल डू द न्यूमेरिकल्स एट वन टाइम सब कांसेप्ट को मिसै के हम न्यूमेरिकल करिबा देखो नेक्स्ट इज आवर मोलारिटी सॉरी मोलालिटी ताकू साधारणतः स्मॉल m रे एक्सप्रेस करा जाए ओके मोलालिटी इज रिटन एज योर स्मॉल m एंड मोलालिटी रो अर्थ होची जार जो फार्मूला टा रहिला ताकू केमदी मन रखिबो मोलालिटी को मन रखिबो मोल्स पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट मोल्स पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट कोन मन रखिबो मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट मोल्स पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट पिला माने सब बेले कहिछि न्यूमरेटर टर्म टा होची सॉल्यूट रो सब बेले कुआई जे जवन सब पुराना पिला समान जानि थिबे मन रखिया पे हम कहितली जे न्यूमरेटर टर्म टा होची सब बेले सॉल्यूट रो डिनोमिनेटर टर्म टा होची सब बेले सॉल्यूशन रो गोटिए वेरिएशन केवल अछि दैट इज योर मोलालिटी केस रे योर डिनोमिनेटर टर्म विल बी फॉर सॉल्वेंट इट विल बी नॉट फॉर द सॉल्यूशन तमर जो फार्मूला टा बनिबो इट विल बी moles of the solute divided by mass of the solvent in kg. The molarity formula कौन रहिला moles of solute divided by what Mass of solvent by mass of the solvent in kg. हला mass of solvent in kg जदि ताको तमे ग्राम रे देइछि then you have to convert it into your kg बुझियला so it will be the solvent moles of the solute divided by mass of the solvent in kg that is called as your molarity expressed as your small m बुझियला what is the unit of Yes, sir. molality रा unit कोन होबो Moles per kg. moles per kg very good moles per kg that is the unit of your molarity okay समस्त बुझिला anyone having any doubt is it doubt nahi No, sir. why you all people are silent ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି କ୍ଲାସ କଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ପିଲା କେବଳ କହୁଛି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଛି why you all are silent ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସନ୍ତୋଷ ରୁଦ୍ର Yes, sir. ବୁଝି ପାରୁନ କି କନସେପ୍ଟ ଯା ପଡ ବୁଝି ହଉଛି ତ Again, then sir. interact ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାଇଁ ବୁଝି ଓକେ ରିତିକା ଶ୍ରେୟାଶ୍ରୀ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ଓକେ ସି क्वेश्चन करो मोलालिटी ऊपर a solution contains write down the question a solution contains 10 moles of sucrose a solution contains 10 moles of sucrose a solution contains 10 moles of sucrose 10 moles of sucrose in 1 kg of solvent in 1 kg of solvent 1 kg of solvent 10 mole of sucrose in 1 kg of solvent calculate the molality of the solution I am saying molality not molarity it is molality 10 moles of sucrose in 1 kg of solvent what will be your molality 10 moles per kg. 10 moles per kg समस्त का आंसर बाहरला बहुत इजी क्वेश्चन ता डायरेक्ट सब दे दिया Yes, sir. just put the value in the formula and you will get your answer so molality is equal to moles by solvent ro mass in kg the number of moles of solute that is your sucrose ro number of moles de deiti 10 divided by mass of the solvent in kg de deiti 1 One. kg so your answer will be 10 mole into kg okay very good next question do another question calculate the molality of a solution calculate the molality of a solution containing 5.3 gram of anhydrous Na2CO3 I am again saying anhydrous Na2CO3
in 400 gram of water, in 400 gram of water, in So 5 point. a solution 5.3 gram, 5.3 gram of anhydrous Na2CO3 in 4 gram of water. Calculate the molality. Calculate the molality. Everyone send the answer in the chat box. यार आगे वाला संग संग पठाओ कारण पिला समस्त करंतु 5.3 घंटे gram आश्चर्य माने शिखी की जाओ समस्त sodium carbonate in 400 gram of water. Calculate the molality. According to PC.IM, yes ललित ललित आसुजी Rasio. निराकार कलीम संतोष 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 Yes, sir. पठेला आंसर वेरी गुड करि पालु तो Yes, sir. ठीक है थैंक यू एवरीवन जल्दी फास्ट वेरी गुड कलीम रुद्र ऋतिका वेरी गुड जल्दी समझते सोनालिका पल्लवी ट्राई करो क्वेश्चन ट्राई करो निराकार सोनालिका वेरी गुड निराकार दिव्यांजलि मृत्युंजय जल्दी पठाओ वेरी गुड मैक्सिमम स्टूडेंट सेंड देयर आंसर वेरी गुड दिव्यांजलि पठेला वेरी गुड ओके वेरी गुड ओके सी तो पिला माने क्वेश्चन ने देछि 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3 anhydrous Na2CO3 in present in 400 ग्राम ऑफ वाटर पचारछि मोलालिटी केते हबो सिंपल फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करिवु सॉल्यूट रो डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट रो मास इन केजी रे ताको डिवाइड करिवा देन वी विल गेट आवर मोलालिटी तो पिला माने मोलालिटी पई हमर दरकार कोन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट सॉल्यूट एठी के anhydrous Na2CO3 Na2CO3. ना माने पिला माने नॉर्मल Na2CO3 और anhydrous Na2CO3 भितर डिफरेंस कोन Dot what is the 10H2O difference है. why I am saying Water of dot crystallization. Dot 10H2O. very good dot H2O पिला माने क्रिस्टल रे साधारणतः केतला क्रिस्टल अछि जोथरे की वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थाए वाटर ता क्रिस्टल फॉर्म रे थाए ताको हमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहू बुझिउची तो सेति पे से कहला जे सोडियम कार्बोनेट रे हमरो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नाही इट इज अनहाइड्रस ता माने सेतिरे वाटर रो प्रेजेंस नाही ओनली Na2CO3 you have to take into your consideration तो जदि मु Na2CO3 को केवल कंसीडरेशन को नेबी देन इट विल बी माय सॉल्यूट तो सॉल्यूट रो मते नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करिवार अछि नंबर ऑफ मोल्स पय मते गिवन मास दे देछि सोडियम कार्बोनेट रो दैट इज 5.3 ग्राम तो मु तार नंबर ऑफ मोल्स ता कैलकुलेट करि परिबि ना नहीं केते हबो Yes, sir. व्हाट इज द नंबर ऑफ 1 by मोल्स ऑफ 20. सोडियम कार्बोनेट 1 by 20. 5.3 divided by what is the molecular mass 106. of Na2CO3 very 106. good 106 because sodium ro kete 23 23. so Na2 अछि so 23 into 2 carbon ro 12 okay oxygen अछि 3टा so it will be kete 16 into 48. very 48. good 48 16 into 3 okay so if you will add all the
atomic masses, then you will get your molecular mass equal to your 106. बुझियाला तो केते आसीबो 106 से तो डिवाइड करले केते आसीबो 5.3 को 1/20. 1/20, that means 0.05. Yes, Yes, sir. 1/20 or 0.05. Okay, so your number of moles will be 0.05. Okay, very good. Now 0.05 mother मिल गला. Now my mass of the solvent in kg, mass of the solvent is 400 gram. तो याको मु केको कन्वर्ट करि परिबि ना नहीं केता हबो Yes, sir. 400 into 0.4 10 to the power minus 0.4 0.4. Okay, so simple bahari gala, then just divide it. That is your 0.05 divided by 0.4. Your answer will be 0.125 column. 1 to 5 समस्त का आंसर है भालला कार भूल थिला की Yes, sir. परिपाला समझते no ठीक sir अछि तो Yes, sir. so it will be 0.125 molal एको कहै जे molal हला molal solution 0.125 molal solution. Okay, so this is all about your molality. Now we will go to your molarity. This is molarity. Molarity previous class रे कहि देइथिली तथापि आउथरे रिपीट कर दउची. Molarity is equal to moles per liter. Molarity is equal to moles per liter. बुझियला जेमति कहिची न्यूमरेटर टर्म फॉर solute, denominator term for your solution. ता माने moles per liter माने जदि हमें ताको फार्मूला रे कन्वर्ट करेबार फार्मूला सिखै नुआ पिला में जान नथिबे जो तीन जन जॉइन करछो बाकी पुराना पिला को ऑलरेडी बतैछि मो फॉर्मेट रे केमनि मन रखिबो बुझियला. तो मोल्स पर लिटर अर्थ कोन मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर. फार्मूला न मन रखले भी यू कैन डू इट जे तमरा यूनिट मने थिबो बुझियला. तो मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स पर लिटर, दैट इज योर मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर रिप्रेजेंटेड एज योर कैपिटल M. मोलारिटी टाको हमें स्मॉल m रे रिप्रेजेंट करूतिले बट हियर वी आर रिप्रेजेंटिंग द मोलारिटी एज योर कैपिटल M. अरे बुझी परछो समझते Yes, sir. Yes, sir. very good. So this is about your molarity. Okay, एक हमरो क्वेश्चंस उडा करिवा मोलारिटी ऊपर करो गोटे क्वेश्चंस करो. A solution is prepared by write down the question everyone. A solution is prepared by dissolving 1 gram of NaOH 1 gram of NaOH 1 gram of NaOH. A solution is prepared by dissolving 1 gram of NaOH in water to get 250 ml of solution. To get 250 ml of solution. Solution को शॉर्टकट रे एमदे लिखु जे sol.n solution. Calculate its molarity. पचारि जी मोलारिटी कैलकुलेट करिया पे MOLARITY कैपिटल M नले पिला माने पुनी कंफ्यूज हे कि मोलारिटी पुनी बुझिबे तो. So it is your molarity पचारि 1 gram of sodium hydroxide in water to produce 250 ml of solution. What is the molarity of the solution? Question बुझी पालो नमस्ते. पिला माने करिवार बिजी बोले करो. Sir 160 नो 160 एते केबे होबनी 160 केम दियाला ठीक से कर तब तक केउ भूल गेला सर से कोड 160 केम दियो एते बड़ वैल्यू केबे होबनी Sir, 0.1. 0.1 वेरी गुड ठीक अछि. Yes, sir, समस्त 0.1. देन आई विल 0.1 Yes, समस्त sir. करो Yes, sir. दिव्यांजलि पठैली sir. हां हां वेरी गुड मु देखि पनेडी आसुनी तो मु शेयर रे अछि स्क्रीन रे. दिव्यांजलि रितिका करूछ तो समस्ते मो टाइम नहीं परनी तो जे करूछ न बुझी पारुछ तो पचार हला कि मु एटी करि दउची तमे जे करि भी न पारुछ देखो. So पचारि जी solution prepared by dissolving 1 gram of NaOH
in water to get 250 ml of solution. Calculate its molarity. पिला माने molarity रा formula कौन रहिला? That is number of moles of the solute divided by volume of the solution in liter. बुझियाला? तो number of moles of the solute. एठी मोर solute होची के? Sodium hydroxide. तो number of moles मु कार calculate करिवि? Sodium hydroxide रो. तो sodium hydroxide रो given mass दे देची 1 gram. So I will divide it with its molecular mass. So sodium 40. hydroxide रो molecular mass केते? 40. So it will be 1 by 40, 40. sir. My number of moles of the very good. Number of moles of the solute will be 40. So it will be 1 by 40. Okay. Now what is the volume of the solution? Volume of the solution केते देची? 250 ml. 250 ml. 250 ml, sir. 50 ml. So just convert this 250 ml into liter. केमती करिवो? 250 into 0.25. 10 to the power 0.25. केते? Very good. 10 to the power minus 3. That is your 0.25. Okay. 0.25 liter. So simple. Just divide it. Okay. That is your number of moles divided by your volume of the solution in liter. The number of moles kete wala moro 1 by 40 divided by kete 0.25. So your answer will be 0.1 capital M. बुझियाला? 0.1 capital M. This will be your answer. Molarity. बुझियाला? Very good. तो पिला माने आउ गोटे क्वेश्चन करो. ए क्वेश्चन टिके काम देइची. मोलारिटी छडा डायरेक्ट मोलारिटी कैलकुलेट करियो देइनी. मोलारिटी रो अन्य किछि क्वेश्चन कैलकुलेट करियो देइची अन्य किछि टर्म ताकू कैलकुलेट करियो चेष्टा करो. Your concept will be clear. How many moles? Write down the question. How many moles and how many grams of number of moles पचारची and number of HCl. What is the number of moles and how many grams of HCl? How many grams of HCl are present in 250 centimeter cube? 250 centimeter cube of HCl solution. 250 centimeter cube of HCl solution. Number of moles पचारिची केते हबो HCl रो and केते तार mass हबो ग्राम रे HCl रो. That is volume दे देची 250 centimeter cube of केते 0.5 molar. 0.5 molar. Molarity भी given दे 0.5 molar of HCl solution. 250 centimeter cube of 0.5 molar HCl solution. पिला माने क्वेश्चन जेतेबेले बेसिक कांसेप्ट रो जहां भी क्वेश्चन थाउ सब बेले चेष्टा कोन करिवो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करिया पे. पिला न ऑलरेडी मु कहिची जो माने क्लास करिचो जे बेसिक कांसेप्ट रो जहां भी क्वेश्चन थाउ सब बेले चेष्टा करिवो नंबर ऑफ मोल्स को आगे पाया पे. आफ्टर गेटिंग नंबर ऑफ मोल्स देन यू कैन फाइंड ऑल अदर टर्म्स. क्वेश्चन बुझी पालो समझते? How many moles and how many grams of HCl are present in 250 centimeter cube of 0.5 molar solution? Do it fast. Number of moles को number of grams को कितने ग्राम होता है? Weight कितने HCl? Very good. आंसर ऐसे स्टार्ट है करो दे. ना पढ़े ना नहीं करो. Everyone, do the question first. Very good. Santosh, very good. Fast. Ritika, then very good. Santosh, very good. Okay, ठीक है, no problem. Everyone, try the question.
वेरी गुड समस्त ट्राई करिया पे वेरी गुड रुद्र संतोष पटेल रितिका वाई एवरीवन जल्दी कलीम पल्लवी सोनम रियाश्री निराकार एवरीवन सेंड योर आंसर ए क्वेश्चन ना जदी करलो देन सब कांसेप्ट एका संगे क्लियर हो नंबर ऑफ मोल्स कांसेप्ट नंबर ऑफ ग्राम वेट पल्लवी सोनम कलीम जदी बुझियोनी किछि प्रॉब्लम नहीं हला जति पारुजो ट्राई करो नले हमें बुझे पल्लवी वेरी गुड 4.56 वेरी गुड राइट सर Okay. मु पठेई सर देखि ओके कलीम सेंड इज आंसर वेरी गुड ओके पिला माने भलो ट्राई करछंती वेरी गुड ओके तो पिला माने नाउ हम करूची क्वेश्चन टा जो माने करूचो भी देखो जे न करि पारलो भी देखो किछि प्रॉब्लम नहीं तो पचारची नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ HCl केते ग्राम रे HCl अछि केते मोल्स रे HCl अछि in 250 centimeter cube of 0.5 molar HCl solution पिला माने मोलारिटी रा फार्मूला कोन नंबर ऑफ moles of solute number of moles of solute divided by volume of the solution divided by volume of solution ना नहीं वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर बुझियला तो जदी वर्तमान मु मोलारिटी सहित इफ आई विल मल्टीप्लाई द मोलारिटी with your volume of the solution in liters then can I get number of moles of the solute जदी Yes, मु sir. मोलारिटी को वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन सहित क्वांटिफाई करि देबी then can I get number of moles of the solute Yes, sir. अरे पाइबी ना नहीं ओके Yes, तो sir. मोर Yes, sir. मोलारिटी दे देची वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन भी गिवन दे देची वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन रा देची 50 सेंटीमीटर क्यूब तो पिला माने 2 सेंटीमीटर क्यूब प्रथमे लीटर को कन्वर्ट करिया को पड़े अरे बुझियला ना नहीं यस सर Yes, sir. केता हबो 1000 डिवाइडेड बाय 250 into सर 250 into 1 10 power लीटर minus इज 3 इक्वल टू पिला माने यूनिट कॉन्सेप्ट समस्त मन होला 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब बुझियला 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब सो केता हबो 250 सेंटीमीटर क्यूब ता केता हबो 250 by 1000. 250 डिवाइडेड बाय 1000 अरे ठीक ना नहीं 1 by 4. 0.25. वेरी गुड 1 by 4 लीटर बुझियला 1 by 4 लीटर वेरी गुड सो पिला माने वर्तमान मु 1 by 4 जोडा मोर वॉल्यूम बाहला लीटर रे ताको मल्टीप्लाई करबी का सहित मोलारिटी सहित दैट इज माय 0.5 तो मोर केता हो आंसर 1 by 0.125. 8 125 0.125 0.125 this is my number of moles of the solute बारी गला मोर HCl नंबर ऑफ मोल्स केते हबो 0.125 बारी गला हला तो पिला माने वर्तमान जदी नंबर ऑफ मोल्स गिवन देइथिबो ताले हमें मास कैलकुलेट करि परिबा ना नहीं नंबर ऑफ मोल्स ता कोन Yes, sir. गिवन बाय मॉलिक्यूलर मास so if I will multiply molecular mass with your number of moles then I can get the given mass the molecular mass of HCl केते केता हबो 36.5 36.5 because chlorine रहला केते 35.5 hydrogen रहला 1 so it will be केते 1 plus 35.5 that will be equal 36.5 so पिला माने 36.5 को जदी हमें नंबर ऑफ मोल्स जोडा हमर बाहला 0.125 जदी ता सहित हमें मल्टीप्लाई करिबा that is our 0.125 into molecular mass is your 36.5 will multiply then your answer will be 4.5625 gram
आंसर बाहर थिला समस्तଙ୍କର 4.5625 ग्राम क्लियर yes sir समस्तଙ୍କର बुझियला क्लियर तो समस्ते Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके नाउ लास्ट टर्म टा देखो नॉर्मालिटी इज आल्सो रिप्रेजेंटेड एज योर कैपिटल एन पिला माने नॉर्मालिटी रे टिके काम अछि देखो नॉर्मालिटी टा होची ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर एमदी मन रखिबू जेमदी मोलारिटी को कहली मन रखिया पे मोल्स पर लीटर सेमदी नॉर्मालिटी को मन रखिबू ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय लीटर ता माने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर लिखा है ऑलरेडी देखो बुझियो ना नहीं नॉर्मालिटी होची कोन ना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बुझियला कोड फार्मूला टा देइची sir बुझियलांडी हाँ। sir ओडा Sir, gram equivalent कौन है? हाँ हाँ मु जाइनी मु पढ़ेइनी नॉर्मालिटी पढ़ेइनी बुझियोची मु देखुतिले नोट रे कोन अछि से अनुसार मु कहिता व्यस्त नै मु कोन न कहि पढिबि ना कोन sir देखो normality is equal to gram equivalent divided by volume of the solution in liter एटी फार्मूला टा देइनी पे मु लिखि दोउची normality is equal to gram equivalent divided by volume in liter सबले कहिची न्यूमरेटर टर्म टा होची कार सॉल्यूट रो डिनोमिनेटर टर्म टा होची सॉल्यूशन रो ता माने फार्मूला कोन हबो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लिटर तो पिला माने वर्तमान ग्राम इक्विवेलेंट कोन मोल कांसेप्ट पढिया भीतर हमें ग्राम इक्विवेलेंट डिस्कस कर नथिले तो ए ग्राम इक्विवेलेंट ता कोन पिला माने ग्राम इक्विवेलेंट सबले मन रखिबो that is equal to equivalent of a substance is equal to weight divided by equivalent mass कोन ग्राम इक्विवेलेंट is equal to weight divided by equivalent mass अरे मन रहला ना नहीं ग्राम इक्विवेलेंट is equal to weight divided by equivalent mass जदि तू गोटे गिवन मास को तार इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करलु देन यू विल गेट योर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दैट सब्सटेंस बुझियला तो नॉर्मालिटी कोन हबो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर अरे बुझियला ना नहीं Sir, नॉर्मालिटी बुझियला तो equivalent master. इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट है ना Yes, कोटा कोन equivalent mass माने कौन? W by E eta कौन? W by E माने कोन इक्विवेलेंट मास पढैली क्लास तो बाबा ना कोन तमरो कलीम sir. हेलो कलीम सहित पे मु पचाली काई पचालो हां मु बुझी पाली काई ना व्हाई यू आर आस्किंग मी द इक्विवेलेंट मास बिकॉज़ क्लास करनो तो इक्विवेलेंट मास रो सहित पे प्रॉब्लम हैला बुझियला Yes, sir. कारण Yes, sir. इक्विवेलेंट मास यू नो इक्विवेलेंट मास जानचो तो No, sir. एसिड रो बेस रो हां बा सेटा प्रॉब्लम हैला बुझियो छी की Yes, तो sir. सही इक्विवेलेंट मास अछि हमर एसिड रो कैलकुलेट करिया पे बेस रो केमति कैलकुलेट करिवा सॉल्ट रो केमति कैलकुलेट करिवा गोटे एटम रो केमति कैलकुलेट करिवा तो तार सब इक्विवेलेंट मास पई मो पढाई थिली किछि प्रॉब्लम नै से विषय में ओटे देखिबा सांग सहित कथा है कि जो सब नुआ अछंती तांको क्लियर करिया पे ओटे क्लास करिवा बुझिला Okay, sir. तो से इक्विवेलेंट मास हला माने Yes, sir. एति केवल जानो जे ग्राम इक्विवेलेंट माने होउची गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस जदि ताकू मु तार इक्विवेलेंट मास से तो डिवाइड करबी देन आई विल गेट द ग्राम इक्विवेलेंट ओके Okay, एति sir. के मन रखो गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट और वेट बाय इक्विवेलेंट मास पिला माने जो माने इक्विवेलेंट मास कास करिचो बुझी पालो तो ग्राम इक्विवेलेंट कोन इक्विवेलेंट मास को तार गिवन मास से तो डिवाइड करिवार अछि बुझियला तो आई एम आस्किंग अगेन बुझियो ना बुझियोनी बिकॉज़ Yes, क्वेश्चन sir. कला बेले समस्त आंसर करियो दरकार yes sir हला तो ग्राम इक्विवेलेंट को जदि तू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन से तो डिवाइड करलो इन लीटर रे देन यू विल गेट योर नॉर्मालिटी हला ताको हमें रिप्रेजेंट करूचे कैपिटल एन रे एंड द यूनिट कोन हो नॉर्मालिटी रो ग्राम इक्विवेलेंट इनटू लीटर इनवर्स ग्राम इक्विवेलेंट इनटू लीटर इनवर्स इट विल बी द यूनिट फॉर योर नॉर्मालिटी अरे बुझियला दैट इज द यूनिट फॉर योर नॉर्मालिटी ग्राम इक्विवेलेंट इनटू लीटर इनवर्स Yes, क्लियर sir. तो पिला माने ये एतिकी आजि क्लास एतिकी थाउ किछटा बाकी रहिला बुझियला सेटा जो मु कवर करी बोली कहउतिली हमर स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन और लिमिटिंग रिएजेंट सेटा बाकी रहि गला अगेन अनदर थिंग गोटे डाइल्यूशन कांसेप्ट अछि
ए हमर कंसंट्रेशन रे सेटा टिके कहबा आ नॉर्मलिटी ऊपर किछटा क्वेश्चन करेबा तो लास्ट क्लास बुझियो जी द लास्ट क्लास माने कमिंग क्लास जोडा आसीबो तमरो आई थिंक योर फ्राइडे तमरो बोध अछि केमिस्ट्री क्लास बुझियो जी तो फ्राइडे दिन तमरो जो केमिस्ट्री क्लास रहिबो से दिन टोटली याको कंप्लीट करी कि ना हम जतेटा परिबा न्यूमेरिकल ता भीतर मु सिलेक्ट करथिबी पाखा पाखी सब कांसेप्ट रो न्यूमेरिकल थिबो ता भीतर 15 रु 20 टा न्यूमेरिकल मु से दिन करैबी तो जो पिला माने क्लास माने मूल रो अछ ओल्ड स्टूडेंट से माने पूरा भल से दाउ कांसेप्ट पूरा पढी के आसो जा से दिन डाउट थियो मते पचारिबो बुझियला आ द न्यू स्टूडेंट फॉर न्यू स्टूडेंट्स बुझाउ छी ठीक है वेट कर एंड फॉर ऑल द न्यू स्टूडेंट्स हला तो से माने देखो जति पारछ पढो अदरवाइज जा प्रॉब्लम हबो हमें डिस्कस करबा हला कलीम Yes, sir. बुझियला Yes, sir. ओके सोनालिका Yes, sir. बुझियला तो नेक्स्ट क्लास को पढी के टिके आस्थिबो जहा डाउट हो मते पचारि हला पल्लवी Yes, sir. बुझियला जा पढाला जी Yes, sir. एनी डाउट No, sir. ओके ललित मृत्युंजय Yes, sir. बुझियला तो सब जा पढाला Yes, sir. Yes, sir. निराकार यस सर बुझियला जा पढाला आज्ञा सर नेक्स्ट क्लास को पढी के आस्थिबो हां Yes, sir. ऋतिका बुझियला जा पढाला